chapter number 1. Our next is the function. So function in class 11th we know that if in a set x and y f यदि मैप है तो each element of set x has unique image in set y, then this special type of relation is called a function. Addition, subtraction, multiplication, division of two function have been also studies in class 11. We would like to extend our study about function. In this section, we would like to study different type of function. Okay, so if we see in the NCERT book, this 4 type of arrow diagram, mapping diagram. This is F1, F2, F3 and F4. Okay, in this section this set x1 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to D, 4 is C. But in the second 1 and 2 both is related to B, 3 is C, 4 E. Here also 1 2 related to A, 3 B, 4 C, but here 1 is related to B, 2 C, 3 A. यहाँ पे different pattern आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. Here in this two figure, 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to D. मतलब each element is set of X is related to one element of set of Y. But in the second figure, 1 and 2 both is related to B. And another thing is also we noted here, in the set number x2, f is not having their pre-image here, but here all element of set x3 having their pre-image here. Here f is not, e is not having their pre-image, but here in the set in the function of f4, all element of set x4 having their pre-image. So on the basis of this, we define the different type of the function. First is our one function, second onto function, many one function, into function. इसी को अगर हम combine कर दे one और onto, जिसको हम bijective function भी कहते हैं, इसको हम यहाँ पे clear करेंगे. Next, this is our 12th class में. तो first यदि हम देखें वन फंक्शन की यदि डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले अगर एरो डायग्राम से देख रहे हैं, 1 का 1 से क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए. यदि आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन यदि हम आपके पास लाएं, यदि सेट एक्स यदि हमारे ऑल स्टूडेंट है, लेट कर लो क्लास 12 के ही बच्चे, हमारे सारे बच्चे यहाँ बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पे उनके रोल नंबर्स के सेट अगर हम ले लेते हैं, रोल नंबर्स के सेट ले लेते हैं, तो स्वाभाविक ही हर एक बच्चे का सेपरेटली क्या होने वाला है, रोल नंबर होने वाला है. नो टू डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर्स, देयरफॉर व्हाट मीन्स ऑफ दैट, दिस एफ मस्ट बी क्या होगा, 1 फंक्शन होगा. ये हमारा एक एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम और ले, यहाँ पे f इज सच दैट एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक सेट हमारे पास डिफाइन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि f ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 ऑफ x. यदि हमें इसको शो देखना है कि ये 1 है कि नहीं है, तो हम एरो डायग्राम से भी यहाँ पे प्रूव करेंगे. बिकॉज दिस बोथ आर एंड नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर 1, f ऑफ 1 रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1 becomes 2. ये नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज 2, then 2 2s are 4 and 3, then 3 2s are 6, 4 4 2s are 8 and so on. यदि हम यहाँ पे देखें तो one time each element has their image in the y 2 times of the given elements. It means 1 is related to 2, 2 is related to 4. It means that again this function कौन सा फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा. थर्ड यदि यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, f is a function, let f is a function from real number to real number, or if f of x will be equal to x square, then in the real number means of that all 1 minus 1 2 minus 2 1 by 2 minus 1 by 2 are included and so on. So if we find f of 1, then 1 is square here. F of minus 1, it is minus of 1 is square.
it means 1. This is also 1, means 1 and minus 1 is related to 1, 2 and minus 2 is related to 4, this both is related to 1 by 4, means that 1 and minus 1 both are related to 1, means this is by the arrow diagram, this is not is 1 function. अब यहीं से हम अपने डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को रखना चाहेंगे कि ए फंक्शन is called 1 function. 1 function is also called the injective function. A function from x to y is defined to be 1 or injective if the image of the distinct elements of set x, देखो स्टार्टिंग वहीं से कर रहा है, इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट. This is the definition of 1 function. तो mathematically means for every x1 and x2 element of x, यदि दो different element of set x1 और x2 के हैं, तो if इसको हम मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करना चाहें उनकी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए. ये इस और सेकंड, यदि हमारे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हमारे दोनों एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो उनकी इमेज भी क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी. मतलब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखेगा. तो इस कंडीशन को हम इन दोनों वे से हम मैथमेटिकली 1 फंक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. इस कंडीशन को हम मोस्टली तब अप्लाई करते हैं जब बोथ x1 एंड x2 आर द सेम पैटर्न नंबर्स, एंड दिस कंडीशन को हम तब अप्लाई करते हैं जब x1 एंड x2 आर नॉट इन डिफरेंट पैटर्न. जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन एक एरो डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझाया था कि f इज सच दैट n to n. यदि हमें इसको मैथमेटिकली 1 फंक्शन को प्रूव करना है तो हाउ वी प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन. तो सबसे फर्स्ट अगेन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को लिखें, f is such that natural number to natural number f of x will be equal to 2 of x. तो और मैथमेटिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट f of x1 is equal to f of x2. f of x1 is equal to f of x2. what is this implies that value of f of x1 क्या होगा, x1 पुट करेंगे तो 2 times of x1 is equal to it becomes 2 times of x2. is this implies, इससे हम कर सकते 2 and 2 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, because this is implies. then x1 is equal to क्या आ गया, x1 x2 for both x1 एंड x2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है. तो ये कंडीशन जो है मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करें, अगर उनकी इमेज भी इक्वल है मीन्स एलिमेंट भी इक्वल है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैथमेटिकली क्या निकल रहा है, डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट इमेज को रख रहे हैं फॉर एवरी x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ x. तो ये हम मैथमेटिकली प्रूव करने का वे है 1 फंक्शन के लिए. और ये जो सेकंड क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे जो थर्ड पैटर्न का जो क्वेश्चन है कि क्या लिखा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. अगर हमें f ऑफ x विल बी इक्वल टू हियर क्या गिवन है, x स्क्वायर. तो इस फंक्शन को हम 1 है कि नहीं ये चेक करने के लिए फिर अगेन यहीं से स्टार्ट करते हैं. जो हमारी डेफिनेशन है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, यदि हम यहाँ x1 पुट करेंगे तो इट बिकम्स x1 स्क्वायर. अगर f ऑफ x2 की वैल्यू निकालने चाहेंगे तो दिस इज x2 स्क्वायर. अगर इसको हम मैथमेटिकली अब सॉल्व करिए आप, x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इट्स गिव्स x1 माइनस x2 आफ्टर द फैक्टराइजेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. इट्स गिव x1 इज इक्वल टू, या सिंपली यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस और x2, यहाँ से भी आपको कर रहे हैं x2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस x2. मतलब x1 एंड x1 जो है दो इमेज जो रख रहा है, वैल्यूज रख रहा है, x1 x2 भी होगा, x1 x2, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारा क्या आना चाहिए, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 देन x1 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए x2. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 की दो वैल्यूज आ रही हैं, x1 और माइनस ऑफ x1. यदि हम इसको एरो डायग्राम से भी देख के समझ रहे थे तो वही चीज़ है हमारे पास कि -1 और 1 की जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है. तो एरो डायग्राम से भी प्रूफ हुआ कि ये फंक्शन हमारा
1 नहीं है, और यहाँ से भी प्रूफ हुआ कि दिस इज अवर फंक्शन इज नॉट 1 इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा ट्विस्ट करते यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इससे अपने कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अलग से इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे लीजिए, देखिए फंक्शन को लेते हैं f is such that from natural to natural। अभी यहाँ पे क्या है, r to r, यहाँ पे नेचुरल टू नेचुरल कन्वर्ट करता है। f of x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। बहुत x यहाँ पे बिलोंग करेगा तो नेचुरल। अब यहाँ से स्टार्ट करिए, x1 इज इक्वल टू f of x2। व्हाट इज दिस इम्प्लाई, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। देन अगेन x इज इक्वल टू क्या आएगा, ओनली x इज इक्वल टू x2 आएगा, क्योंकि माइनस ऑफ x2 तो हमारे यहाँ पे सेट में एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, बट माइनस x2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ, और क्या है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। मीन्स ये केवल इम्प्लाइज कर रहा है x1 इज इक्वल टू x2 इम्प्लाइज कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ द एरो डायग्राम भी हम देखेंगे तो नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंक्लूड होंगे। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। हैंस इस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो कौन सा फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये कि हमारा फंक्शन किस सेट से किस सेट में जा रहा है। हमारा जो x1 इज इक्वल टू x2 है, दोनों ही जो है वो हमारे किस में, फॉर ऑल x1 एंड x2 किसको बिलोंग हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर को। और इस क्वेश्चन में भी हमारा, हम क्वेश्चन को कि यहाँ पे x1 की 2 वैल्यूज क्यों लिख पा रहे हैं यहाँ पे x1 एंड x2 की, बिकॉज यहाँ पे जो बहुत x1 एंड x2 किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकली हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो ये फंक्शन है किस सेट से किस सेट में क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। तो द 1 फंक्शन की ये जो कंडीशन है आपको क्लियर, डेफिनेशन क्लियर होगी बाय द एरो डायग्राम। और ये अ फंक्शन f such that x2y is defined as 1 function if the image of distinct element of x under f are different। अब यहाँ पे और हम इसको ग्राफ के मेथड से भी थोड़ा सा आपके सामने लाना चाहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने पहले अभी लेके कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन ये वाला, इस क्वेश्चन को लेते हैं फिर से। इसको जो हमारे पास है f such that r to r f of x is equal to x square, इसको लीजिए। ये क्या है, देखिए इट इज y is equal to, this is what, this is upward direction of the parabola, equation of the upward direction of parabola। okay, अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, एक पैरेलल लाइन विच इज आवर एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे भी अगर देख रहे हो ये 1 ले लेते हैं, इसको अगर मानते 1 और ये -1, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए y की यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है और -1 के लिए भी y की एक वैल्यूज आ रही है। मीन्स x1 और x2 अगर डिफरेंट ले रहे हैं बट y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। यहाँ से भी हमारे पास देख रहा है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो रहा है, मेनी 1 फंक्शन हो रहा है। मेनी से 1 में रिलेशनशिप जारी है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, मेनी 1 फंक्शन कहलाता है। अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन जा रहा है। तो एक ग्राफिकल मेथड से भी हम देख सकते हैं, यदि कर्व की हम ट्रेसिंग करें, एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं, वो जो लाइन जो है कर्व को यदि 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर दे तो वो हमारा कौन सा फंक्शन हो जाता है, मेनी 1 फंक्शन हो जाता है। अदरवाइज ये फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन होता। क्लास 11th में जैसे हमने साइन फंक्शन की भी जब ट्रेसिंग ली थी, ट्रेसिंग ऑफ साइन फंक्शन, ऐसे आप देखें ये 1 और -1 के बीच में हमारा पास ये फंक्शन क्या कर रहा था, लाई करता है। यहाँ पे जो टिप पॉइंट है यहाँ पे 1, अगर 1 लाई कर रहा है, देखिए पैरेलल लाइंस अगर इस कर्व में ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर हमारे कर्व्स की, हर से पॉइंट पे y सेम जा रहा है, x यहाँ पे y सेम जा रहा है, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। तो मतलब सिंपली यहाँ पे जो कर्व है वो 1 नहीं हो जाएगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। इट इज़ मेनी 1 फंक्शन की ट्रेसिंग कहलाती है कि बिकॉज डिफरेंट x के लिए
डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए वाई की एक ही वैल्यू जा रही है, तो एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है, मिनिमम फंक्शन कहलाता है। बिकॉज देखो यहाँ 1 and 2 एक ही इमेज जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट वो रख रहा है, तो फंक्शन कौन सा। तो हमने देखा कि एक फंक्शन जो है कब 1 1 होता है, एरो डायग्राम की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से और मैथमेटिकल वे की हेल्प से। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। अगर कोई फंक्शन में इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं होती है तो फंक्शन क्या कहलाता है, मिनिमम फंक्शन कहलाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।